हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की वीडियो डाल रहे हैं और आपके दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, उनको ये चैनल शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो हम एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज For transportation purposes in India, the first preference is given to, the correct option is roads. मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका करेक्ट आंसर पढ़ूंगा, जिसे हम हर वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन और उसका सही आंसर। फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेस इन इंडिया, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term used for major or important roads of a country is highway. Highway is used for important roads of a country. Next, the portion of a road surface which is used by vehicular traffic is known as, vehicular traffic जो पोर्शन रोड का यूज करती है उसको बोलते हैं कैरेज वे। कैरेज वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, carriageway is protected by dash dash wide shoulders. So 1.25 to 2 meter wide shoulders. 1.25 to 2 meter wide shoulders. Next question, the Indian Road Congress was set up in, the Indian Road Congress was set up in 1934. Next question, for the waterbound macadam road, the recommended camber is, for waterbound macadam road the recommended camber is, camber कितना रिकमेंड किया है, कितना बताया है, तो उसका आंसर है 1 in 30 to 1 in 48, 1 in 30 30 1 in 30 to 1 in 48. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन waterbound macadam roads ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, स्मॉल ब्रोकन stones are laid in 2 layers. Next option, voids between the stones are filled by stone dust. Next question, next option, camber for drainage is given at the formation level itself. And last option, all of the above. The correct option is all of the above. In waterbound macadam roads, small broken stones are laid in 2 layers. Voids between the stones are filled by stone dust. Camber for drainage is given at the formation level itself. All of the above is the right answer. Next question, according to the Indian Road Congress, the maximum width of road vehicle is 2.25 meter. 2.25 meter is the right answer. Next question, in order to give satisfactory service throughout the year, the road surface should, first option, have a good carriageway, have smooth gradient, have a good wearing surface. Last option, all of these. The correct option is all of these. Next question, the top of the ground on which the foundation of road rests is called, the top of the ground on which the foundation of road rests is called subgrade. Subgrade is the right answer. Next question, when the bearing capacity of soil is poor, when the bearing capacity of soil is poor, the intensity of traffic is high, and the intensity of traffic is high, and additional layer is provided between the soiling and subgrade. This additional layer is called subbase. This additional layer is called subbase. And bearing capacity of soil is poor and intensity of traffic is high, at that time one more layer is, additional layer is provided, it is called subbase. Subbase provide किया जाता है. Next question, the highest point on road surface is called, आप सभी को मालूम होना चाहिए, highest point on the road surface is called crown. CROWN, crown. Next question, the road surfacing should be, ऑप्शन दिए गए हैं, impervious, durable, stable, all of these. All of this is the right answer. The road surface should be impervious, durable, stable. The slope of a line joining the crown
and the edge of the road surface is known as. फिर से पढ़ता हूँ. The slope of the line joining the crown and edge of the road surface, crown और रोड का जो कॉर्नर है, एज ऑफ द रोड सरफेस, उस लाइन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्रॉस फॉल, क्रॉस स्लोप, कैम्बर, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. उसको क्रॉस फॉल, क्रॉस स्लोप या कैम्बर से किसी भी नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थिकनेस ऑफ रोड सरफेसिंग डिपेंड्स अपॉन. थिकनेस ऑफ रोड सरफेसिंग डिपेंड्स अपॉन. ऑप्शन दिए गए हैं टाइप ऑफ ट्रैफिक, इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, टाइप ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इज. मालूम होना चाहिए आप सभी को कैम्बर का ऑब्जेक्टिव क्या है. करेक्ट ऑप्शन है टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल. टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर, बारिश की वजह से जो पानी रोड पे आता है वो जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए, इसलिए कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट. इन स्कैंटी रेनफॉल एरियाज. स्कैंटी मीन्स जहाँ पर रेनफॉल कम होता है. इन स्कैंटी रेनफॉल एरियाज द कैम्बर प्रोवाइडेड विल बी. करेक्ट ऑप्शन है फ्लैटर. फ्लैट कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है. इन स्कैंटी रेनफॉल एरियाज कैम्बर प्रोवाइडेड विल बी फ्लैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द शेप ऑफ द कैम्बर प्रोवाइडेड for cement concrete pavement is straight line. Correct option है straight line. For cement camber provided for cement concrete pavement is straight line. Straight line provide की जाती है. concrete road के लिए camber straight line से provide किया जाता है, straight line shape में. Next. A barrel camber consists of. A barrel camber consists of. करेक्ट ऑप्शन है ए कंटिन्यूस कर्व आइदर पैराबोलिक और इलिप्टिकल. बैरल कैम्बर में कंटिन्यूस कर्व होता है, वो पैराबोलिक भी हो सकता है या फिर इलिप्टिकल भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कैम्बर कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रेट स्लोप्स जॉइनिंग एट द सेंटर इज कॉल्ड स्लोप्ड कैम्बर. करेक्ट ऑप्शन है स्लोप्ड कैम्बर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The rising of outer edge of the road above the inner edge is known as. फिर से पढ़ता हूँ. The raising of outer edge of the road above the inner edge is known as. ऑप्शन दिए गए हैं सुपर एलिवेशन, कैंट, बैंकिंग, all of these. Yes, correct option is all of these. Next question. Super elevation should not be dash dash than the camber. Super elevation should not be less than the camber. Should not be less than the camber. Next question. The main advantage of providing super elevation is. Main advantage of providing super elevation is. ऑप्शन दिए गए हैं to decrease the intensity of stress on the foundation, to increase the stability of fast moving vehicles, to achieve हायर स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सभी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुपर एलिवेशन इज. करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स. सुपर एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ द रोड सरफेस along its length is called. The rate of rise or fall along its length is called gradient. Correct option है gradient. Next. The equilibrium super elevation is given by. The equilibrium super elevation is given by. Correct option है v square divided by 127 r. v square divided by 127 r. Equilibrium super elevation. Next. The maximum rate of super elevation is given by. Maximum rate of super elevation is given by E is equal to v square divided by 225 r. ध्यान में रखिएगा E is equal to v square divided by 225 into r. Next question. The steepest gradient which is to be permitted on the road is called.
ऑप्शन दिए गए हैं मैक्सिमम ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। फिर उसको बोला जाता है लिमिटिंग या फिर मैक्सिमम, इसलिए ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। उसको मैक्सिमम भी बोलते हैं और लिमिटिंग भी बोलते हैं, स्टीपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस मेजर्ड along the center line of a road over which driver can see the opposite object on the road is called sight distance। उसको साइट डिस्टेंस कहा जाता है। ड्राइवर कैन सी द ऑपोजिट ऑब्जेक्ट, जहाँ तक के दिखाई देता है ड्राइवर को, उसको बोलते हैं साइट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इज द डैश डैश ऑफ रिएक्शन डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इज द सम, एडिशन किया जाता है, सम, तो करेक्ट ऑप्शन है सम ऑफ रिएक्शन डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। एडिशन की जाती है रिएक्शन डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस की एडिशन करने के बाद हमें स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, तो फिर ऑप्शन में पढ़ता हूँ, रिएक्शन टाइम, ब्रेकिंग टाइम, स्पीड ऑफ व्हीकल, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इज ऑलवेज डैश डैश ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस ज़्यादा लगता है ओवरटेकिंग करने के लिए सेफली, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, ऑलवेज लेस देन ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। Next question, a curve which consists of a single arc connecting two straights is known as simple circular curve. Next question, the side drains are provided on both sides of the roadway when the road is, question फिर से पढ़ता हूँ, the side drains are provided on both sides of the roadway when the road is in cutting, when the road is in cutting, side drains दोनों साइड में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बाउंड मैकेडम रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। वाटर बाउंड मैकेडम रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जी हाँ दोस्तों, और सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजिड पेवमेंट। Next question, flexible pavements have self-healing properties, dash dash properties, flexible pavements have dash dash properties, correct option है self-healing properties, self-healing properties होती है flexible pavement। Next question, the cost of construction of rigid pavements is dash dash as compared to flexible pavement। cost of construction of rigid pavement is मोर एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मोर होती है रिजिड पेमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर फंक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉन्क्रीट पेमेंट इज, मेजर फंक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉन्क्रीट पेमेंट इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड। ट्रैफिक वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे पासिंग ऑन ए सेक्शन ऑफ द रोड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन है एवरेज डेली ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग डील्स विद, ऑप्शन है ट्रैफिक ऑपरेशन, डिजाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल डिवाइसेस, एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, लास्ट ऑल ऑफ दिस। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये तीनों से भी डीलिंग करता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल क्रॉसिंग इज ए डैश डैश साइन, लेवल क्रॉसिंग इज ए वार्निंग साइन। तो फिर दोस्तों ये क्वेश्चंस फिर से आप एक बार केयरफुली लिसन कीजिएगा। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।
और जी हाँ दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। और आपको और किसी सब्जेक्ट पे एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।